So, let us fold our hands and do this invocation to Ashtavakra Gita. नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे सृष्टि है इजनेस। नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सर्व अनुभव हैं, कॉन्शियसनेस। नमन उस आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुखों को स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य प्रदान करती है, द गोल ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस। So today, what we have in store are shlokas 91 to 100 of chapter 18. This will be our second last session of Ashtavakra Gita. Thereafter, we will complete the two chapters 19 and 20 in one day, because they are Janak Raja's Udgars after listening to Ashtavakra's Gyan. Okay? तो अब ये गुरु पूर्णिमा का उपलक्ष्य है और गुरु के लिए कुछ खूबसूरत शब्द जो कुछ साल पहले इस पेन से लिखे गए थे वो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि आज बहुत ही मेल्टेड मेरा अंदर से मन हो गया था और मैं गुरु को अपने हर फैसेट में गुरु को पा रही थी। इन आंखों की ज्योति तुम ही हो गुरुदेव, इन कानों की शक्ति तुम ही से गुरुदेव, इन प्राणों की स्फूर्णा तुम ही हो गुरुदेव, इन हाथों की सेवा तुम ही से गुरुदेव, इस दिल की धड़कन में बसते तुम ही हो, इन पैरों की हलचल में हर पल तुम ही हो, इस तन से भूले तुम ही हो कराते और उसमें बड़ा सा सबक हो सिखाते, पहाड़ों के शिखरों में ऊंचे तुम ही हो और गहरे समुद्रों में नीचे तुम ही हो, जल में तरल हो, नदी में हो चंचल, हो सूरज में तेज और चंदा में शीतल, तुम ही से है उत्पन्न, तुम ही में है विचरण, तुम ही में समाया हुआ है हर कण, गुरुदेव ऐसे हो करुणा के सागर कि भक्तों की नजरें हर पल तुम ही पर, कि भक्तों की नजरें हर पल तुम ही पर। गुरुदेव ने बहुत दिनों से, बहुत सालों से गुरु पूर्णिमा के ऊपर अलग अलग मैसेजेस भेजे हैं। कुछ बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस जो हमको बहुत लाइट हार्टेड बनाएंगे, वो मैं आपके सामने गुरुदेव के मैसेजेस रखना चाहती हूँ, जो उन्होंने जो गुरु पूर्णिमा के दिन अपने डिवोटीज के लिए गुरुदेव ने कहा। तो गुरुदेव ने कहा, wanting spirituality is as natural as wanting deep rest, as wanting to be loved. हम लोग सब चाहते हैं कि हम loved रहें. To become spiritual is a longing as fundamental as the longing to receive love from people, as wanting comfort and happiness. तो अगर तुमको स्पिरिचुअलिटी की लॉन्गिंग है तो ये तुम्हारा घर वापस लौट ना कराएगी, ये लॉन्गिंग तुम्हें अपने घर के रास्ते तक पहुंचा देगी। फिर गुरुदेव ने कहा, गुरु इज नॉलेज, गुरु इज लव। गुरुदेव ने कहा, गुरु पूर्णिमा is the new year for the spiritual seeker and a day of inner celebration.
On this day, one should reflect upon the knowledge acquired in the past year and resolve to grow in the coming year. क्या क्या चीज मेरी हासिल हो चुकी है, क्या क्या मेरे अंदर अभी भी वीकनेसेस हैं, उसके ऊपर रिजॉल्व करके कदम कदम हम आगे बढ़े. The day of Guru Purnima is an opportune time to express our gratitude to the Master from all traditions over generations who have preserved this knowledge and passed it down to us. We should be filled with gratitude towards our gurus who have preserved this gyan and expressed it and disseminated it amongst the devotees. और इस बार का जो गुरु पूर्णिमा के दिन का मैसेज है, गुरुदेव said, Guru is power, the principle. He is not a person. Guru is energy. Then Gurudev said, it is easy to be a saint. Just be peaceful and be in your own sadhana. And you are saint-like, you are a saint. Then he said something so beautiful. He said that there are some who can only create. अभी देखिए किसके ऊपर, who creates? Brahma. Gurudev said there are some who can only create, some who can only manage or maintain, and there are some who can only transform or annihilate Shiv Tattva. But the one who is in whom all these qualities are ever present, he is the Guru. Imagine, in him, Brahma, Vishnu, Mahesh are manifest every day in front of all of us, all the time. That is who a Guru is. Can he ever be referred to as a person? In some satsang, he said, Guru is ever young. Don't look at his body and say, Are, Gurudev to itne umar ho gayi hai. Nahi. He said, Guru is ever young. Guru Tattva is ever young. And we all have experienced that every day we are learning so much from so many facets of that life presents before us. So Guru Tattva is always alive. It is fresh as a daisy and ever young. You understand? Then he said, you must look upon the Guru as your own, apna aap, like your breath. I mean, we are not even aware that we are breathing. But if we focus, then we suddenly become aware. So also, if we focus, we find the divinity is ever with us and it is giving us sustenance. That is the Guru Tattva. Guru Purnima is the day to feel the closeness to the Guru. Let the joy well up within you. Gurudev always wants to make us very, very happy and blissful and all the time joyous. अभी इतनी बड़ी बड़ी देखिए लाइफ तो ऐसे पटकती है, ऐसे मारती है, उसके भीतर भी हमको अपने लिए कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेना है, जो कि the joy is ever welling within us. And we become a fountain of that joy. And we are always drinking the nectar of Brahmagyan because of how the Guru has presented it. So easily palatable, so easily
put before us in a plate so that we can always enjoy it. और अब मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको आपके वो 10 वर्सेस कर देती हूँ, और उसके बाद में आपके लिए जो चीज है वो उससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। जो अब वर्सेस पढ़ूंगी उसकी क्लैरिटी आपको उस वीडियो से आएगी जो आपको लास्ट में दिखा करके मैं ये सेशन खत्म करूंगी। ठीक है, अब ये लास्ट के 10 श्लोक अष्टावक्र बता रहे हैं कि वो ब्रह्म तत्व क्या है, उसके बारे में आप सुनिए। वो ब्रह्म तत्व क्या है और किस तरह से एक रियलाइज्ड मास्टर में वो मैनिफेस्ट होता है। उसको हर भाव में शोभा देखे, नेगेटिविटी कोई नहीं। गलित हुई अशोभन मति, वो बुद्धि ही उसकी खत्म हो गई जो नुक्स दिखाती है। उसके अंदर निष्काम शोभावान वही, चाहे भिखारी या भूपति। जो निष्काम है उसी की ग्लोरी है, उसी की चमक है। निष्कामता की चमक निष्काम व्यक्ति से जो निकलती है, शोभा, है ना। चाहे वो भिखारी हो तभी भी वो चमकता रहता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। वो कभी भिखारी हो ही नहीं सकता, दिखता है खाली भिखारी, लेकिन वो राजाओं का राजा है। जो सरल है, निष्कपट है। ये तो सब समझ गए, सरल और निष्कपट। बोले जिसमें यथार्थता, जिसके शब्दों के अंदर सच्चाई की गूंज है, यथार्थ उसके अंदर से निकलता है। सच, जो सत्य है, जो परमानेंट चीज है, वो उसको दिखाई देती है, उसकी कॉन्शियसनेस में वो हमेशा रहता है। उसमें कैसे संकोच पले, होवे कैसे स्वच्छंदता। किस बात का तो उसको संकोच भी नहीं है। There is no affectation in his actions or his conduct. Nothing unnatural. He is established in his universality. और उसी भाव की खुशबू उसके हर एक शब्द में से आती है। और स्वच्छंदता यहाँ पर मतलब है कि उसके अंदर उच्छृंखलता, उसके अंदर अहंकार नहीं उसके अंदर से चमकता, उसके अंदर से कोई ऐसा कोई दो बटी के पॉइंट ऑफ फिंगर की देखो किस किस बुरी तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ऐसी स्वच्छंदता नहीं है जो कि लोग उसके ऊपर उंगली उठा करके बोल सके, क्योंकि ही इज एस्टैब्लिश्ड इन हिज वननेस विद एवरीवन। अंडरस्टैंड। 93, निज आत्म में विश्रांत नर, he is resting in that state of the oneness, आत्मा। आशा रहित जो होता है, जगत के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उस शोक रहित प्रज्ञानी का, उसको कभी कोई मिजरी टच नहीं करती, सौरो टच नहीं करता। जिसकी प्रज्ञानी मतलब प्रज्ञा जिस ज्ञानी की जाग गई है, जो जो भी अनुभव होता है वह किसे कहे कैसे बोले, वर्णन नहीं उसका होता है। वो बखान नहीं करता कि भाई मैं उस एलिवेटेड स्टेट में हूं। उसका बिहेवियर कैसा रहता है, सब ऑर्डिनरी, साधारण रहता है। किससे बात करे वो अपनी एग्जॉल्टेड स्टेट की। 94, सोया हुआ सोता नहीं, नहीं स्वप्न में भी शयन है। तो जब वो सोने जाता है, किस भाव से जाता है कि ये शरीर सोएगा, मेरी प्रज्ञा जगती रहेगी, कॉन्शियसनेस विल बी। तो इसलिए वो, उसका शरीर सोता है लेकिन अपनी प्रज्ञा से वो जग रहा है। चैतन्यता उसकी, सबकी चैतन्यता सजग रहती है, लेकिन उसको मालूम है कि नींद में भी मैं जगता हूं। जगता हुआ जगता नहीं,
सब जब काम कर रहा है तो तब उसको मालूम है कि दिस वर्ल्ड इज अ डेड थिंग, इट्स मीनिंगलेस, बट बिकॉज आई एम हियर ऑन द फंक्शनल प्लेन आई मस्ट डू सम एक्टिविटी। तो जगता हुआ जगता नहीं, बेचैन में भी चैन है। In the midst of all the turmoil, in the midst of the battlefield, Krishna had a smile playing on his lips because he was ever drunk with the joy of his Atma Tattva. उनके लिए जय पराजय मीनिंगलेस थी, तभी भी जय के लिए कदम उठाना है, क्योंकि नेगेटिविटी के ऊपर जीत पानी अच्छी बात है। पल पल ऐसे जीवन का कण कण होता पावन है। इस तरह का जो जीवन जीता है हर समय दूसरों की भलाई के लिए, उसका एक एक सांस जो है वो पवित्र है, किसी की भलाई ही करता है। 95 चिंता सहित है दिखता, फिर भी न चिंता युक्त है। लगेगा कि भाई ये इतना ज्यादा काम में लगा हुआ है, इसको बहुत चिंता होगी, लेकिन असल में उसको चिंता नहीं होती। मन बुद्धि वाला भासता, मन बुद्धि से वो मुक्त है। इतने अच्छी वो दलीलें देता है, वकालत करता है, सब करता है वो, लेकिन असल में मन बुद्धि का उसको उसके तत्व के लिए वो जिस बात में टिका हुआ है, जिस जिस अपनी सच्चाई से जो युक्त है, वहां मन और बुद्धि का कोई काम नहीं। ज्ञानी अहम रहित होता, चाहे अहम से युक्त लग